Good evening, everyone. We were dealing with bills of exchange and accounting of that. Now, right, whatever we have seen, I will revise, I will recap in some 5-10 minutes. Bills transactions or bills are actually the credit instruments, right, to understand. So bills of exchange are used, right, whenever, right, there is a credit transaction of purchase and sale of goods. So when seller sells goods on a credit to buyer, that buyer becomes debtor and seller becomes creditor. Now creditor draws a bill on buyer. Therefore, creditor becomes drawer and the drawee is a buyer. Buyer becomes drawee. Creditor, that is a drawer, may ask drawee, that is a buyer, to pay the bill to drawer, that is creditor himself or someone else on behalf of creditor, that is called as pay. The person to whom bill made payable is pay. So there are three parties to bills of exchange, right? Drawer, drawee, and pay. Negotiable Instruments Act 1881 governs the negotiable instruments in India. There were three negotiable instruments: checks, bills of exchange, and promissory notes. The accounting of bills of exchange and promissory note is same. Promissory note is a note, promise given by, right, buyer to his creditor, that is his seller, that he will make the payment of the amount for the goods received by him, right, after a period of time, as may be decided between them. The person who draws the bill or who receives the bill, right, for him, that bill is called as bills receivable, because it is a right, it is an asset for him. He has to recover that amount against the bill, or he can use that bill and he can get something, like he can sell the bill and he can get some money. He can use that bill in settlement of the liability, like that. And the person who has accepted the bill or who has given the bill, right, for that person, the same bill is called as bills payable. And bills payable is a liability because you are liable to pay against the presentation of the bill. Anyone who presents you the bill, right, you are supposed to honor the bill. It's liability for you. Then मैंने बोला कि ड्रॉवर के पास चार ऑप्शंस होते हैं with respect to a single bill. He can go either of the option. One, he will retain the bill till the due date. Second, he will discount the bill with the bank at some discounting charges. Third, right, he will endorse the bill in the settlement of his dues towards his creditor. And fourth, he may send the bill for the collection, that is bill sent for collection at some collection charges. He will pay the collection charges to the bank. So four options with the drawer. Basically two options with the drawee. Drawee either honors the bill or dishonors the bill. Even if drawer, अगर आप honor की बात करते हो, drawer में honor before the due date, और उसको बोला जाता है drawee में honor the bill before the due date, जिसको बोला जाता है retirement of the bill. If drawee honors a due date, that is called as honor of the bill. And in some exceptional cases, drawee may, right, not honor the bill. Maybe he became insolvent or he doesn't have sufficient amount to pay on due date. In that case, that is called as dishonor of the bill. Dishonor होगा तो आगे क्या होगा, right, वो हमें समझना है. आगे novation of the contract होता है, novation, right. So वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है. Then, so drawee basically has two options, honor और dishonor. फिर मैंने बोला कि जब डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर द ओनर ऑफ द बिल, रिटेंशन के केस में खुद ड्रॉवर, डिस्काउंटिंग केस में बैंक इज द ओनर, एंडोर्समेंट के टाइम एंडोर्सी योर क्रेडिटर इज ए ओनर, एंड कलेक्शन के केस में ड्रॉवर इटसेल्फ इज ओनर. दे विल अप्रोच द नोटरी पब्लिक and get the fact of dishonor noted on the bill by paying some charges. They are called as notary charges. जब dishonor होगा, the owner of the bill has to approach the notary public and he has to get the facts of dishonor noted down on the bill.
then that bill can be used as an evidence against the drawee for the recovery of the money. Notary public performs that function by charging some nominal fees. That fees is called as notary charges. They are exactly same as dishonor charges in case of check. Dishonor charges are passed on the person who is responsible for the dishonor. Matlab, example, you have paid me fees by check, and if your check get bounced, I will deposit, right? You have paid me fees by check. I deposit that check into my account. I am a recipient, right? I am a payee, and my bank is a recipient bank. मैं मेरे बैंक में जाके check deposit करूँगा. And suppose वो check bounce होता है, तो my bank levy charges to me. मुझे charges लगाती है. जो person check deposit करता है, उसकी बैंक उसको charges लगाती है. And ना कि आपके बैंक आपको charges लगेगी, because जो पर्सन डिपॉजिट करता है उसकी बैंक उसको चार्ज लगता है, बिकॉज उस बैंक को जाके वो चेक प्रेजेंट करना होता है, राइट? द ड्रॉवी बैंक को, और ड्रॉवी बैंक रिसिपेंट अकाउंट में, मतलब मेरी बैंक वो चेक आपके बैंक को प्रेजेंट करेगी, एंड आपकी बैंक अगर फंड्स है तो मेरे बैंक को देगी और मेरे बैंक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी. सो इफ दैट चेक गेट्स बाउंस्ड, माय बैंक लेवी चार्जेस टू मी. And those charges are not because of me, those charges are because of you. So I will pass on those charges to you. आपने ये सुना भी होगा, हम क्लासेस में बहुत बार बोलते हैं, if someone has given fees by check and check bounce होता है, तो we also recover the dishonor charges from the student. Yes, we do recover, because that dishonor charges is not a mistake of the class, it is a mistake of the student, and we recover that as well. So dishonor charges are to be recovered, right, from the person who is responsible for the dishonor. हम बैंक को पे करते हैं, हम पे करते हैं मतलब बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डेबिट मारती है. वो क्या हमारी परमिशन के लिए रुकते नहीं. यू हैव लर्न दैट इन BRS इन योर 11th कि बैंक लाइक ट्रांजैक्ट सम ट्रांजैक्शंस. बैंक कोई ट्रांजैक्शन करती है, लाइक डायरेक्ट डेबिट मारेगी, डायरेक्ट क्रेडिट मारेगी, तो इन दैट केस बैंक आपको डायरेक्ट डेबिट करेगी फॉर द डिसऑनर चार्जेस, एंड बाद में हम आपसे रिकवर करेंगे. ठीक है? सो dishonor charges are to be recovered from other person who is responsible for dishonor. इसलिए जब बिल डिसऑनर होता है, अभी मैं जो समझाना है, बट जस्ट अभी ये बात निकली तो मैं समझा रहा हूँ. जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर और द होल्डर ऑफ द बिल विल गो टू नोटरी पब्लिक एंड विल पे द नोटरी चार्जेस. वो नोटरी चार्जेस पे करेगा और बाद में किससे रिकवर करेगा? ड्रॉवी से रिकवर करेगा, बिकॉज ड्रॉवी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर. अगर ड्रॉवी ने पेड किया होता तो बिल ऑनर होता, तो नोटरी पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं होती, नोटरी चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती. बट ड्रॉवी ने डिसऑनर किया है, इसलिए हमें नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ा, हमें नोटरी चार्जेस देने पड़े, एंड दीज चार्जेस आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉवी, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज चार्जेस, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर. समझ में आ रहा है? तो उसकी भी हमें अकाउंटिंग समझनी है, एंड विद राइट इन ड्यू कोर्स वो भी चीज समझाएंगे. Moreover, right, there is one question. Sir, if drawee wants his debtor to pay off the drawer, is it that possible? I didn't get you. Sir, if drawee wants his debtor to pay off to the drawer, is it that possible? Try to understand, होगा क्या? That is always possible. Drawee को drawer को pay करना है. Drawee may ask his debtor to make the payment to drawer. If that possible, due date पे वो possible हो सकता है, तो कोई problem नहीं. At the end, drawer wants money and drawee has to pay the money. That's it. Drawer को पैसे मिलने से मतलब है on due date. That is possible. Accounting में भी वो possible है, ऐसे नहीं कि possible नहीं है. That is like 100% possible. But हमारे एग्जाम के लिए वैसे questions नहीं रहेंगे. ठीक है? At the end क्या करना था? ड्रॉवी खुद उसके डेटर से पैसे लेके हमें देने वाला था, तो वो उसको बोलेगा ऑनर द बिल. मतलब वो क्या बोलेगा? खाली उसको जाके पेमेंट करो, मेरा नाम बोल दे, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? सो दैट इज वेरी क्लियर. सो दैट इज ऑलवेज पॉसिबल. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स राइट the calculation of the due dates. That is very important, because whenever we will be passing the entries, we have to consider dates of the like bill as well. So the next important discussion is the calculation of due date of the bill. So let me share my screen.
यस, ठीक है। सो फ्राइडे को हम यहाँ पे एक फॉर्मेट ड्रॉ किया था. Many students have submitted their homework. Really good thing. I appreciate your efforts. Just I will discuss some of the points जो मैंने ऑब्जर्व किए, नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे. एक चीज मैंने देखी है, एक दो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट मैं आपको क्या समझाता हूँ क्या एरर की है. आई डिडंट पॉइंटेड आउट दैट एरर, मुझे लगा नहीं वो एरर है, बट समझ में आ जाएगा किसने वो की है. बच्चे स्टैम्प को ऊपर लेके जाते हैं. मतलब जनरली मैं क्या करता हूँ, आई कीप दैट इन ए सेम लाइन. आप देखोगे राइट, जनरली स्टैम्प शुड नॉट बी अबव द नेम ऑफ द ड्रॉवर. ड्रॉवर के ऊपर नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए, लाइक दिस. ठीक है. देन मेंटेन स्पेस बिटवीन द स्टैम्प एंड द अमाउंट बॉक्सेस. एक स्पेस रखो, एक बॉक्स मत रखो. बहुत लोग क्या करते हैं, उसको ही कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद ठीक है, व्हाट आई हैव सीन, बच्चे यहाँ पे स्पेस नहीं देते. यू हैव टू गिव द स्पेस, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है. There are students who forget to write this, pay to me or my order, pay to XYZ and his or her order. This statement, this word actually makes this bill what? Right? Negotiable. ये negotiable instrument करता है, pay to me or my order. अगर आप खाली payable to me रहेगा तो it is not a negotiable instrument. I cannot transfer it to someone else. तो ये गलती से नहीं भूलना है. This is the most important thing. Pay to me or my order, pay to XYZ and his or her order. Very, very important. उसके बाद I think बाकी सब ठीक था. जहां पे मुझे डाउट्स लगे, there was one student, अगर ये बिल 16,500 पे एक्सेप्ट होता है तो भी वो लिखता है accepted for 16,500. If bill is accepted as it is, उसको जनरल एक्सेप्टेंस बोला जाता है. कौन सा एक्सेप्टेंस बोला जाता है? जनरल एक्सेप्टेंस. जनरल एक्सेप्टेंस में यू हैव टू जस्ट राइट एक्सेप्टेड, नथिंग एल्स. इफ यू एक्सेप्टेड द बिल विद सम क्वालिफिकेशन, उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाता है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस माना जाता है. इन दैट केस यू हैव टू राइट डाउन द कंडीशन. आप कैसे उस बिल को आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया है. सो अदरवाइज डोंट क्वालिफाई इट अननेसेसरली. ठीक है. So now I will move towards the calculation of the due date. This is very important. और लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज पे आई थिंक कंक्लूड किया था. आई डोंट रिमेम्बर. यस, आई थिंक हाँ, लास्ट लेक्चर में किया था कि करेंसी नोट्स आर द प्रोमिसरी नोट्स. करेंसी नोट्स आर द प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉन बाय, किसने ड्रॉ की होती है? आरबीआई, एंड मेड पेएबल टू बियरर. Currency notes are those promissory notes which are always drawn by the RBI and made payable to the bearer. Holder को payable होती है. A common man cannot draw a promissory note which is payable to bearer. अगर कोई promissory note payable to bearer होगी, it will become a currency note. Example मैंने आपको एक लिख के दिया कागज कि I promise to pay you 1,000 or anyone on your behalf. So, और मैंने ऐसे लिखा है, right? I promise to pay 1,000 to the bearer of this note. क्या लिखा है? I promise to pay 1,000 to the bearer of this note. तो ये नोट जिसके हाथ में जाएगी उसको 1,000 मिलेंगे मेरे से. Now this is nothing but like a currency note. So try to understand. ऐसी नोट जो पेएबल टू bearer है, promissory note नहीं हो सकती. वो खाली आरबीआई ड्रॉ कर सकता है, ना कि कॉमन मैन. And therefore a promissory note drawn by common man other than RBI, I mean, right, made payable to bearer is illegal, is void ab initio. Void, right? Void ab initio. Void ab initio. मतलब it is illegal from the very beginning. ठीक है. So let's start. और मैंने चेक्स के केस में क्या बोला था? चेक्स आर दोस बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हिच आर ड्रॉन ऑन बैंक. सो आप आगे से याद रखना कि चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है एंड करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट है. लेकिन वो प्रोमिसरी नोट जो पेएबल टू बियरर है वो करेंसी नोट है. अगर राइट,
एंड हम लोग वो प्रोमिसरी नोट ड्रॉ नहीं कर सकते आगे. नाउ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स. कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट 1 मार्क के लिए इन द फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, उसमें या सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है. एंड दूसरा इंट्रीज करते टाइम हमें इनके इस डेट को कंसिडर करना होता है. कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ ए बिल. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ए ड्यू डेट ऑफ ए बिल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने बोला कि there are basically two types of the bill on the basis of the tenure. मैंने बोला था अगर याद है टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम बिल्स एंड दूसरे होते हैं कौन से, राइट, डिमांड बिल्स और डिमांड इंस्ट्रूमेंट. मैं आपको बोल रहा हूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं. इसके लिए पहले नॉलेज होना चाहिए ये सब चीजों का. So there are two types of the bills, टाइम बिल्स एंड डिमांड बिल्स. टाइम बिल्स वो बिल्स जिनमें पीरियड मेंशन किया होता है, 10 days, 15 days, 90 days, 30 days और months, 1 month, 2 months, 3 months. मैंने आपको ये भी चीज बोला कि इन रियलिटी ए बिल कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर मोर देन 90 days. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए. एग्जाम में हो सकता है बट इन रियल लाइफ दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड डिमांड बिल्स आर दोज बिल्स व्हिच आर पेएबल, राइट, ऑन डिमांड. तो इनके केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यू डेट, नो स्पेसिफिक ड्यू डेट. इनके केस में कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट नहीं होती है बिकॉज दे आर पेएबल ऑन डिमांड. सो उनकी ड्यू डेट वो दिन रहेगा जिस दिन ड्रॉवर डिमांड करता है पैसों का. क्या बोला, ध्यान देना. मैंने बोला इस एग्जांपल मैंने आज बिल ड्रॉ किया आप पे, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया आज, और 10 दिन के बाद मैं आपको बोलता हूं मुझे बिल क्या करो, पेड करो. द बिल इज ड्रॉन ऑन डिमांड. उसमें लिखा जाता है एग्जांपल ऑन डिमांड. यहाँ पे कैसे लिखा है, 3 months आफ्टर डेट, वहां पे लिखा जाएगा ऑन डिमांड, पे टू मी और माय ऑर्डर. तो वहां पे लिखा गया ऑन डिमांड, उसमें पीरियड नहीं है. यू हैव टू पे ऑन डिमांड. व्हेनेवर आई डिमांड यू, यू हैव टू पे मी. लाइक चेक्स आर डिमांड इंस्ट्रूमेंट. एक बार चेक आपने मुझे दिया तो मैं जब मेरे बैंक में डालूंगा विद इन 3 months दैट हैज टू बी पेड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स में देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यू डेट. ये वर्ड मेरा याद रखना, मे बी आज यूजफुल नहीं होगा बट जो सीए फाउंडेशन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा. डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स के केस में देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यू डेट बिकॉज दे आर पेएबल व्हेनेवर डिमांडेड. जिस दिन मैं डिमांड करूंगा उसकी ड्यू डेट वो रहेगी. क्लियर है? एंड therefore there is no benefit of 3 grace days for the payment. ये क्या है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. ये क्या है मुझे समझाना है. व्हाट डू यू मीन बाय 3 ग्रेस डेज? मतलब जिस दिन मैं डिमांड करूंगा उसी दिन आपको पेमेंट करना होगा. आपको 3 एडिशनल डेज नहीं मिलते, 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे पेमेंट के लिए. आप बोलोगे 3 ही क्यों? बिकॉज इट इज गिवन इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. अब मैं इस पे आता हूं तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा. टाइम बिल्स आर दोज बिल्स जिनमें पीरियड मेंशन किया होता है, मे बी इन द नंबर ऑफ डेज, मे बी इन द लाइक मंथ्स. इनके केस में यस देयर इज अ ड्यू डेट, राइट, देयर इज स्पेसिफिक ड्यू डेट, there is specific due date, there is specific due date. Because I know the period. These bills are of 2 types. ये भी मैंने पहले कभी समझाया है. फर्स्ट, राइट, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल, एंड दूसरा होता है आफ्टर साइट बिल.
आफ्टर डेट बिल एंड आफ्टर साइड बिल, ऐसे दो बिल होते हैं. आफ्टर डेट बिल इनको बोला जाता है, डिमांड बिल्स को बोला जाता है एट साइड बिल. क्या बोला जाता है? एट साइड बिल. एट साइट मतलब whenever demanded. आफ्टर साइट इज अलग एंड एट साइट अलग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो लाइक डिमांड बिल में लिखा जाएगा, एग्जांपल यहाँ पे 3 months आफ्टर डेट है, वहां पे स्टार्ट होगी ऑन डिमांड पे टू मी और माय ऑर्डर, और एट साइट पे टू मी और माय ऑर्डर. समझ में आ रहा है? आगे. So I am talking about the time bills, after date bill and after side bill. So how to calculate due date? After date bill मतलब your due date, your period, right? Tenure of the bill, अलग अलग नाम है उसके. Tenure of the bill, period of the bill, right? Term of the bill, जो भी रहेगा आपका period, tenure, that will start from the date of drawal of the bill. तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना. Nominal due date is equal to, nominal due date is equal to आफ्टर डेट बिल के केस में, राइट, डेट ऑफ द बिल, डेट ऑफ द बिल, और कोई लोग उसको बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉवल ऑफ द बिल प्लस टेन्योर ऑफ द बिल. क्या बोला? योर पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉवल ऑफ द बिल. इस तारीख से स्टार्ट होगा. आफ्टर डेट के केस में यहां से योर पीरियड विल स्टार्ट. सो योर 3 months विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of December 2016 अगर वो आफ्टर डेट बिल है तो. नॉमिनल ड्यू डेट एंड देयर इज अ लीगल ड्यू डेट. लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू, लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू, कैसे ढूंढते हो लीगल ड्यू डेट? ध्यान देना, नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 grace days. This is very important. You get 3 additional days to make the payment, arrange for the payment. मतलब 3 months का पीरियड है तो आपको 3 months 3 days के बाद पेमेंट करना होगा. 3 months period of the bill plus 3 days to arrange the payment. Law provides you grace days, additional days. So nominal due date is a date without adding grace date. Legal due date is after adding 3 grace days. और मैं बोल रहा हूँ पेमेंट अरेंज करने के लिए 3 days मिलते हैं. जो बेनिफिट टाइम बिल में, वो बेनिफिट डिमांड बिल में नहीं है. सो डिमांड बिल में यू डोंट गेट 3 additional days to arrange for the payment. जिस दिन डिमांड किया जाएगा उसी दिन पेमेंट करना होगा. नो एडिशनल ग्रेस डेज. इसलिए चेक के केस में जिस दिन मैं चेक डिपॉजिट करता हूं उसी दिन वो क्लियरिंग को जाता है. ओके, मे बी उस दिन हॉलीडे रहेगा या कुछ है तो नेक्स्ट डे जाएगा. इट टेक्स टाइम टू क्लियर द चेक. वो बैंकिंग के वजह से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके प्रोसेस की वजह से. टू बी वेरी फ्रैंक, एक्चुअली इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. उसमें 3 days का ग्रेस पीरियड नहीं होता है. आप बोलोगे सर 2 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने को, 3 दिन लगते हैं. अगर सेम बैंक चेक है, सपोज एग्जांपल मेरा आईडीबीआई में अकाउंट है, एक तो हम कैम का आईडीबीआई में अकाउंट है और आपका भी आईडीबीआई में अकाउंट है. अगर आप मुझे सेम बैंक का चेक देते हो, अगर मैं आज जाके डिपॉजिट करता हूँ तो आज के आज वो क्लियर होता है. डोंट आस्क फॉर 3 day ग्रेस डेज. अगर अलग बैंक का चेक है तो इट टेक्स टाइम, वो क्लियरिंग हाउस को जाता है. सेम बैंक के चेक्स कभी भी क्लियरिंग हाउस को क्लियरिंग के लिए जाते नहीं. आप यू विल लर्न इन इकोनॉमिक्स. जब मैं आपको इकोनॉमिक्स में आरबीआई चैप्टर सिखाऊंगा तब आपको क्लिक होगा कि कैसे होता है क्लियरिंग का. बैंकिंग सिखाऊंगा मैं, राइट, उसमें कैसे क्लियरिंग होता है. तो सेम बैंक के चेक्स क्लियरिंग के लिए जाते नहीं. यू डोंट नीड टू सेंड इट टू द क्लियरिंग हाउस. आरबीआई एक्ट्स एज ए क्लियरिंग हाउस. सब बैंक्स के चेक्स वो क्लियर करता है. बट अगर सेम बैंक के आईसीआई चेक, आईसीआईसीआई का अकाउंट भी आईसीआई का है, आपने मुझे आईडीबीआई का चेक दिया, मैंने आईडीबीआई में जाके डाल दिया, इट इज द सेम बैंक चेक. ये क्लियरिंग हाउस में नहीं जाता, वो उसी दिन क्लियर होता है. सो उसमें 3 days नहीं लगे. अगर अलग बैंक है, लाइक मेरा आईडीबीआई में है और आपने मुझे आईसीआईसीआई का चेक दिया है, तो इट विल गो टू द क्लियरिंग हाउस. एंड क्लियरिंग हाउस वाले टाइम लेते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 days 3 days एज द केस में भी. अगर बीच में इंटरविन में लाइक अगर पब्लिक हॉलिडेज है तो ऑब्वियसली इट विल एक्सटेंड, थोड़ा और टाइम लगेगा. लाइक अब कोरोना में तो और थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज बैंक्स उतने फ्रीक्वेंटली फंक्शन नहीं हो रहे, रिसोर्सेस कम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. आई एम सिंपली टेलिंग यू वन थिंग कि चेक के केस में 3 ग्रेस डेज का बेनिफिट नहीं होता है. अगर आप बोलोगे सर 2-3 दिन के बाद क्लियर होता है तो दैट इज अ टेक्निकल इशू.
not because of the 3 grace days. Law does not provide the benefit of 3 additional days in case of demand bills. दूसरा, what is after site bill? The bill which is accepted with the terms of after sight, मतलब the period will start from the date of acceptance. Suppose ये bill after sight होता, suppose 3 months after sight होता, तो 3 months would have started from 4th of December and not from the 1st of December. अगर ये after sight bill होता तो, so the tenure will start from the date of acceptance. So after sight bill ध्यान देना. So right, after sight bill के केस में nominal due date is equal to date of acceptance of the bill, acceptance of bill plus tenure of the bill. That can be number of months, that can be number of days. Tenure of the bill. So अगर बिल आफ्टर डेट है तो पीरियड कब से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ ड्रॉवल से. अगर वही आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो पीरियड कब से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. एंड लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू राइट नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज. समझा? क्लियर है? सो grace days comes under time instruments and not on demand instruments. ठीक है? So note first, this is very important notes. 1, 30 days does not amount to 1 month. Like example, आपका bill 90 days का है तो don't say it is for 3 months. You have to calculate like 90 days from the date of bill or date of acceptance. जहां से भी 90 days गिनने ना तो days on days गिनने, ना कि उसको 3 months बोलो. Second note, if right, legal due date, that is date after adding 3 grace days, after adding 3 grace days falls on लीगल ड्यू डेट मतलब 3 days ऐड करने के बाद की डेट. नॉमिनल ड्यू डेट मतलब 3 days विदाउट एडिंग. एक्चुअली नॉमिनल ड्यू डेट कंसेप्ट नहीं है हमारे 12th बोर्ड में, वो भी महाराष्ट्र बोर्ड में, बाहर नहीं की तरफ. नॉमिनल ड्यू डेट एज सच कंसेप्ट नहीं, जो भी होती है ना वो आपकी लीगल ड्यू डेट ही होती है. लोग उसको लीगल ड्यू डेट भी नहीं बोलते, उसको ड्यू डेट ही बोलते हैं. क्या है ड्यू डेट ऑफ द बिल? तो हम 3 days ऐड करके ही बोलते हैं. बट यहाँ पे उन्होंने बोर्ड के सिलेबस में लिखा है नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ. एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली ड्यू डेट ही बोलते हैं, वो लीगल ड्यू डेट होती है आफ्टर एडिंग 3 days. सो पीरियड प्लस 3 days ऐड करने के बाद की डेट. इफ लीगल ड्यू डेट, राइट, दैट इज डेट आफ्टर एडिंग 3 days फॉल्स ऑन is if legal due date is a public holiday. एग्जाम्पल आपने ड्यू डेट निकाली, ठीक है, आपने ड्यू डेट निकाली एंड वो 3 days आपने ऐड किए एंड वो 3 days ऐड करने के बाद, हाँ यस प्लीज, सही बोल. कैन यू हियर मी? ओके ठीक है. इफ यू रेज द हैंड बी प्रॉम्प्ट. ठीक है. सो क्या बोला, ध्यान देना. इफ लीगल ड्यू डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे, मतलब 3 days ऐड करने के बाद 15 अगस्त आ गया. 15 अगस्त हॉलीडे होता है. 26 जनवरी आ गया, छुट्टी रहेगी. 3 days ऐड करने के बाद, 3 days ऐड करने के बाद की डेट सेटलमेंट की डेट होती है. एंड अगर सेटलमेंट डेट, ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे आती है, ऑन दैट डेट जनरली, राइट, ऑन दैट डेट बैंक्स आर क्लोज. जनरली क्या, बैंक वैसे भी क्लोज होते हैं पब्लिक हॉलीडे पे. इवन संडे इज आल्सो पब्लिक हॉलीडे. इफ 3 days ऐड करने के बाद की जो लीगल ड्यू डेट है
अगर वो पब्लिक हॉलिडे आती है तो पेमेंट कब होगा? उस दिन तो पेमेंट नहीं होगा, बिकॉज बैंक्स बंद रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस दिन बैंक बंद रहेंगे तो कैसे पेमेंट करोगे? इन दैट केस, डोंट यू नो द पब्लिक हॉलिडेज इन एडवांस? यस, हमें पब्लिक हॉलिडेज एडवांस में पता होता है। गवर्नमेंट या लॉ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 आपको पीरियड के बाद 3 डेज पेमेंट अरेंज करने के लिए टाइम देता है, एंड आपको पीरियड तो है प्लस 3 डेज भी है। तो लॉ बोलता है कि अगर वो थर्ड डे पब्लिक हॉलिडे आता है तो यूर ड्यू डेट इज प्रीवियस वर्किंग डे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। पहले के वर्किंग डे लेना है, वर्किंग डे वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन ए पब्लिक हॉलिडे, राइट, legal due date is preceding, is previous working day, preceding or previous working day। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ध्यान देना। सपोज हमारी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है वो जाने दो, मैं समझाऊंगा। सपोज हमारी ड्यू डेट, ओरिजिनल ड्यू डेट 15 अगस्त को आती है, 15 अगस्त को ड्यू डेट आती है, तो इन दैट केस 15 अगस्त is not my due date, I will take 14th August। My due date is 14th August because हमें पेमेंट करना है एंड पब्लिक हॉलिडे सबको पता होते हैं, तो यू शुड हैव प्रिपेयर्ड, राइट, कि हमें पता है कि 15 अगस्त को पेमेंट नहीं होगा, तो हम पहले प्रीवियस वर्किंग डे इज पब्लिक हॉलिडे, previous working day is is your legal due date, I mean previous working date of a public holiday will be treated as your due date। sir, suppose मंडे था तो ये आ गया आपका संडे। संडेज आर आल्सो बैंक्स क्लोज होते हैं, पब्लिक हॉलिडे की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर कौन सी डेट? प्रीवियस वर्किंग डे। 15 अगस्त का प्रीवियस वर्किंग डे क्या रहेगा? 13 अगस्त। सो योर ड्यू डेट विल बी 13th of August। Your due date will be 13th of August because this is public holiday, this is also public holiday। So इसके पहले का वर्किंग डे ढूंढना है। 14th is not working day, 13th is working day, तो 13th will be treated as like due date because public holidays are already known। तो अगर आपको पता है कि आपकी ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे आने वाली है, तो मेक अरेंजमेंट 1 day बिफोर दैट। समझ में आ रहा है? एक दिन पहले ही करो वर्किंग डे। सेकंड, इफ दैट लीगल ड्यू डेट हैपेंस टू बी इमरजेंसी हॉलिडे, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी हॉलिडे, बंद कर दिया पूरा। इमरजेंसी हॉलिडेज आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड अगर अब इमरजेंसी हॉलिडे पहले पता नहीं होती, इमरजेंसी हॉलिडे अचानक से इमरजेंसी में डिक्लेयर की जाती है। इन दैट केस ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जाम्पल, आज एग्जाम्पल आज 11th में, सपोज कल एक बिल ऑनर होने वाला है, 3 डेज ऐड करने के बाद कल एक बिल ऑनर होने वाला है, एंड आई मे ड्रॉ वी, मुझे पता है कल ड्रॉवर मेरे पास आएगा एंड आई विल मेक द पेमेंट टू हिम, आई विल अरेंज द पेमेंट, ये 3 डेज ऐड करने के बाद। एंड सपोज मुझे आज अब भी पता चलता है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस इमरजेंसी हॉलिडे, कल का इमरजेंसी हॉलिडे। इमरजेंसी हॉलिडेज आर नॉट नोन इन एडवांस, वो इमरजेंसी में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो टुमारो बैंक्स विल बी क्लोज्ड। नाउ टेल मी, राइट, देयर वाज नो चांस फॉर मी टू मेक द पेमेंट ऑन ए प्रीवियस डे, मेरे पास टाइम ही नहीं था। पब्लिक हॉलिडे के केस में हमें पता होता है कि वो दिन पब्लिक हॉलिडे रहेगा, बट इमरजेंसी हमें क्या पता था कि ये 12th में विल बी द इमरजेंसी हॉलिडे। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया इमरजेंसी हॉलिडे, तो गवर्नमेंट बोलती है दिस बिल विल बी पेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। सो क्या बोला मैंने? बिकॉज इमरजेंसी में हमें पता नहीं होता इसलिए नेक्स्ट डे लिया जाता है, पब्लिक हॉलिडेज में हमें पता होता है इसलिए प्रीवियस डे लिया जाता है। सो इफ legal due date happens to be emergency holiday, so I will say legal due date is, right, next working day, succeeding working day। समझ में आ रहा है? So this is important।
अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. सपोज मेरा बिल ऑनर हो रहा है, मेरा बिल ऑनर हो रहा है, मतलब ड्यू डेट है उसकी 3 डेज ऐड करने के बाद. एग्जाम्पल 14th अगस्त. 14th अगस्त इज द ड्यू डेट 3 डेज ऐड करने के बाद. एंड दिस इज अ इमरजेंसी हॉलीडे. तो मुझे पहले आना है या बाद में जाना है? इमरजेंसी हॉलीडे तो आगे जाओ. तो नेक्स्ट डे इज 15th अगस्त. ये भी छुट्टी का दिन है, तो मुझे कौन सा लेना होगा? और आगे जाना होगा 16th अगस्त. आप बोलोगे सर ये पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीवियस आ जाओ. मेरा वर्डिंग देखो, अगर लीगल ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वर्किंग डे. तो नेक्स्ट वर्किंग डे ढूंढो. नेक्स्ट डे इज नॉट वर्किंग डे, जाने दो. उसका नेक्स्ट देखो, इज इट वर्किंग डे? यस. सपोज ये संडे है, तो ये भी वर्किंग डे नहीं रहेगा, तो आपको कहां पे जाना होगा? 17th अगस्त. तो 17th अगस्त विल बी ट्रीटेड एज योर ड्यू डेट. सो एक्चुअली आपकी ड्यू डेट कौन सी थी? 14th अगस्त. वो इमरजेंसी आ गई, तो आगे चलो, आगे वाला वर्किंग डे ढूंढो. तो 15th अगस्त पब्लिक हॉलिडे, वो वर्किंग डे नहीं रहेगा, जाने दो. 16th अगस्त आ जाता है आपका संडे, जाने दो. फिर 17th अगस्त विल बी ट्रीटेड एज योर ड्यू डेट. बिल कब ऑनर होगा? 17th अगस्त का होगा. सो लॉ बहुत क्लियर है. लॉ बोलता है अगर आपकी लीगल ड्यू डेट इमरजेंसी डे आता है तो आगे जाओ. आगे कब तक जाओ? जब तक आपको वर्किंग डे नहीं मिलता तब तक. एंड अगर आपका पब्लिक हॉलिडे आता है, एग्जाम्पल हमारा ड्यू डेट 15th अगस्त को आता है, तो लॉ बोलता है यू ऑलरेडी नो तो 15th अगस्त इज पब्लिक हॉलिडे, तो आपको पीछे आना है. तो पिछले वाला वर्किंग डे लो. सपोज 14th अगस्त इज अ वर्किंग डे, तो 14th अगस्त विल बी द ड्यू डेट. सपोज 14th अगस्त संडे है, तो वो भी छुट्टी का दिन रहेगा. तो हमें क्या ढूंढना है? प्रीवियस वर्किंग डे. 14th अगस्त इज नॉट वर्किंग डे, तो हम क्या लेंगे? 13th ऑफ अगस्त. हम 13th अगस्त लेंगे. सो दिस विल बी माय वर्किंग. सो यहाँ पे बिल क्या होगा? ऑनर होगा. सर ये डेज कौन देता है? पब्लिक हॉलिडे एंड इमरजेंसी हॉलिडे कौन देता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. These are given by RBI, and I will show you that must, right, everyone must have that knowledge. Try to understand. ठीक है, I will try to find it on RBI site. मैंने देखा था, right? RBI के वेबसाइट पे रहता है ये. देखो, this is RBI वेबसाइट. इंस्टेड ऑफ डूइंग टिकटॉक एंड एवरीथिंग, थोड़ा बाकी भी चीजें करते जाओ. लाइफ में बहुत सारी चीजें करने के लिए. दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट, राइट? यहाँ पे आप देखोगे मोर लिंक्स में बैंक हॉलीडेज दिखेंगे. मैंने क्लिक किया उसको. नाउ यू विल गेट बैंक हॉलीडेज. ठीक है. नाउ दे हैव गिवन यू लाइक सिटी वाइज बैंक हॉलीडेज. नीचे देखो क्या है. देखो रेड मार्क जिनके सामने है, हॉलीडेज अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. मिल गया? दिख रहा है आपको? आर यू राइट? हॉलीडेज अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दीज आर पब्लिक हॉलीडेज. गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस करके रखे. सो अगर इन तारीख पे जहां जहां पे रेड मार्क है, अगर उस तारीख पे हमारी ड्यू डेट आती है 3 डेज ऐड करने के बाद, तो हमें कौन सी डेट लेनी होगी? प्रीवियस डे. से ब्लू वाला देखो, हॉलीडेज अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड आरटीजीएस एज वेल. मतलब उस दिन आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट नहीं होगा, आरटीजीएस नहीं होगा. एंड उसके बाद है बैंक्स क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स. जनरली राइट, बैंक्स कब क्लोज करते हैं उनके अकाउंट्स? अब ध्यान देना, राइट? दे हैव गिवन यू हॉलीडेज. देखो सो अब हम कहां पे? पुणे में, राइट? सो आई विल गो टू द पुणे. सो हमें मुंबई देखना होगा. ठीक है, ध्यान देना, मुंबई. ठीक है, यस. देखो क्या दिख रहा है? मुंबई को मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में आप पकड़ के चल सकते हो, ध्यान देना. ठीक है. सो
द क्वेश्चन इज इफ ड्रॉवी वांट्स टू पे इन कैश, तो भी ये रूल रहेगा क्या? द रूल इज ऑलवेज देयर, whether ड्रॉवी pays in cash और ड्रॉवी pays by check और आरटीजीएस एक्सेट्रा, ये रूल हमेशा रहेगा, बिकॉज ड्यू डेट भी वैसे निकाली जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आगे अगर पब्लिक हॉलिडे तो ड्यू डेट पहले आती है, ड्रॉवर आपको पहले ही पैसे मांगने आएगा, वो पब्लिक हॉलिडे तक नहीं रुकेगा, वो पहले ही आएगा, ध्यान देना. लाइक एग्जांपल, 1st May वाज ए पब्लिक हॉलिडे इन मुंबई, मतलब इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे पकड़ के चलो. 7th इज ऑल्सो पब्लिक हॉलिडे एंड 25th इज ऑल्सो पब्लिक हॉलिडे. तो 25th को आरटीजीएस भी नहीं होगा. सो आपको नीचे मार्क दिया है, देखो, और उसके रीजन भी नीचे लिखा है. 1st May को क्या था? महाराष्ट्र डे और लेबर डे था, राइट. 7 को बुद्ध पूर्णिमा थी एंड ईद हो है, रमजान ईद है ऑन 25th. अगर महाराष्ट्र में कोई ये बिल इस दिन पे सेटल होने को आता है, तो इनके केस में हम क्या लेंगे? प्रीवियस डे लेंगे. समझ में आ रहा है? अगर कोई बिल 1st May को ऑनर होने वाला था, तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 30th अप्रैल रहेगी. अगर कोई बिल 7th May को ऑनर होने वाला था, तो हम क्या लेंगे? 6th May लेंगे. तो लेट मी ऑल्सो शो यू द कैलेंडर. होपफुली कैलेंडर है मेरे इसमें. यस, देखो. सो राइट, आपको दिखेगा भी यहाँ पे, राइट. एक सेकंड, कौन सा? यस, 7th को हॉलीडे है. 7th कौन सा डे आता है? 7th हो चुका है, तो इतना सोचने वाली बात नहीं थी. आगे वाला देखते हैं, एक सेकंड. 25th को पब्लिक हॉलिडे है. सो अगर ऑब्वियसली हर स्टेट में अलग अलग रहेगा. मैंने मुंबई ओपन किया, तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? यू विल फाइंड देम ऑन आरबीआई वेबसाइट. मैंने आपको दिखाया भी, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको किधर. ठीक है. सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट दीज हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड बाय whom? They are declared by, right, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक सेकंड, हम मार्च में जाके देखते हैं. मार्च में क्या था? देखो, मार्च में देयर वर 2 हॉलीडेज. एक 10th को था और 25th को. 10 का रीजन दिया है होली, जो कुछ भी रहेगा, एंड 25th को था गुड़ी पाड़वा. बैंक क्लोजिंग डे कब रहता है? आपने देखा क्या? बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स दिख रहा है येलो. अभी तक येलो नहीं मिला, वो अप्रैल में होगा. अप्रैल. 1st अप्रैल को कौन सा है? देखो, 1st अप्रैल को कौन सा है? दिखना चाहिए. कौन सा है? येलो है. सो 1st अप्रैल इज ए हॉलीडे फॉर द बैंक्स. उनके एम्प्लॉयज को जाना पड़ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट कॉमन मैन के लिए बैंक्स क्लोज रहती है, बिकॉज ऑन दैट डेट कौन सी छुट्टी रहती है? देखो क्या लिखा है उन्होंने? एनुअल क्लोजिंग ऑफ बैंक्स. दिख रहा है? सो एनुअल क्लोजिंग ऑफ बैंक्स इज ऑन ए 1st अप्रैल. एवरी ईयर 1st अप्रैल को बैंक में हम लोगों के लिए छुट्टी रहेगी, बट बैंकर्स को जाना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू क्लोज द बुक्स. सो ये पता होना चाहिए. सो आई एम राइट. इसके सिवा कुछ है? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई सिंपली मीन, राइट, आई सिंपली मीन you will get these public holidays on the RBI website. सर इमरजेंसी हॉलिडेज कहाँ पे मिलेंगे? इमरजेंसी हॉलिडेज ऐसे पहले डिक्लेयर नहीं किए होते. लाइक आपको जून के भी पब्लिक हॉलिडेज यहाँ से पता चलेंगे. देखो, राइट, देयर आर नो हॉलिडेज इन जून. जुलाई देखते हैं, देखो, या शायद से वो अपडेट नहीं करते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यस, देयर आर. सो जून में कोई हॉलिडेज नहीं थे, जुलाई में नहीं थे, बट अगस्त में. देखो, अगस्त में 15th अगस्त को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से भी हॉलिडे है. एट द सेम टाइम आरटीजीएस भी बंद रहेगा. 1st अगस्त भी है, राइट. उसके बाद उसका नीचे दिया है उन्होंने कुछ, तो बकरी ईद है 1st अगस्त को, एंड 22nd को क्या है आपका? गणेश चतुर्थी है. ठीक है. सो आई सिंपली मीन पब्लिक हॉलिडेज पहले ही पता है आपको. अगर आपको पता है उस दिन पब्लिक हॉलिडे, तो आपको क्या लेना होगा? प्रीवियस वर्किंग डे लेना होगा. इमरजेंसी हॉलिडेज आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट. वो ऐसे वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे आपको. कहाँ पे? वो इमरजेंसी में डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऑफिशियल गैजेट में मिलेंगे. आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. आप देखो, मैं आपको ऐसा एग्जांपल देखूंगा आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा.
I think almost everyone must have seen that movie भाग मिल्खा भाग. उसमें एक सीन है मूवी में कि जो मिल्खा सिंह होता है उसको पाकिस्तान में जाके रेस में पार्टिसिपेट करना होता है, राइट. एंड उसको पंडित नेहरू पूछते हैं कि अगर तू जीतता है तो तुझे क्या मिलेगा. एंड ही सेज अगर मैं जीतता हूं तो मुझे, राइट, क्या करो, इंडिया में एक दिन की हॉलीडे रखना. मे बी वो उसका बैकग्राउंड दिखाया उस लड़की के साथ वगैरह. तब वो बोलता है कि मेरे नाम पे भी एक दिन छुट्टी रहेगी. एंड ही डिमांड्स कि अगर मैं रेस जीतता हूं तो आप मुझे क्या, एक पूरे इंडिया को छुट्टी दे दो. एंड द डे ही विंस द रेस, और आपने देखा होगा पंडित नेहरू अनाउंसेस द हॉलीडे. सो एक एग्जांपल है. अब उस दिन एक्चुअली बैंक चालू थी नहीं थी, आई डोंट नो, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू रिलेट. सो वो डायरेक्टली हॉलीडे दिया गया, ऐसे वो प्लान्ड नहीं था. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है. सो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में मे बी वो इमरजेंसी हॉलीडे बोला जाएगा. अगर उस दिन बैंक्स क्लोज होते हैं, अगर उस दिन कोई बिल ऑनर होने वाला था तो नेक्स्ट डे पे जाएगा. तो राइट, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, राइट, ऑफ पब्लिक हॉलीडे जो मैंने अभी डिस्कस किए. तो अगर पब्लिक हॉलीडे तो पहले आ जाओ, अगर इमरजेंसी हॉलीडे तो आगे जाओ. दिस इज सेकंड रूल. ये रूल पता होना चाहिए. दीज रूल्स आर गिवन अंडर negotiable instrument act 1881. थर्ड. नाउ नेक्स्ट, ठीक है, आगे. इफ, अच्छा ये रूल मैं थोड़े बाद में लिख के दूंगा, राइट. सो आई विल टेक सम एग्जांपल्स एंड हम वो सॉल्व करेंगे. ध्यान देना, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने वो निकाल के भी रखे. सो कैलकुलेशन ऑफ द ड्यू डेट, ध्यान देना, राइट. कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द फॉलोइंग भी. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3. मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, ध्यान देना. मैं इसको क्वेश्चन को वहां पे कैरी फॉरवर्ड करता हूं, ठीक है. सो वहां पे मुझे रूल लिखना है तो मैं वहां पे जगह रखता हूं. आई विल टेक बोथ द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. सो लेट्स सी. सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है. नाउ आई विल हेल्प यू एंड बाकी हम साथ में करेंगे. फर्स्ट क्या लिखा है, ध्यान देना. कैलकुलेट द ड्यू डेट of the following bills. Serial number 1, date of the bill is 28th January 2008. Period of the bill is 1 month. If period is in month, calculation is very easy. Month on month जाओ, month on month जाने का मतलब कैसे मैं दिखाता हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1. What is the date of the bill? Date of the bill, या मैं ऐसे लिखता हूं तो जल्दी समझ में आएगा. ध्यान देना, एक में ही मैं सब करता हूं, वो सबके लिए इजी रहेगा. सो लेट्स सी. इफ पीरियड ऑफ द बिल इज इन मंथ तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहता है, बहुत मतलब बहुत ओरली हो जाता है, ठीक है. सो यहां पे लिखूंगा केस 1, ठीक है. डेट ऑफ द बिल प्लस टेन्यूर इन मंथ्स. मैं मंथ्स में दिखाऊंगा, पहले मंथ वाले ले लूंगा, फिर डेज का बाद में समझाऊंगा. देयरफॉर एवरेज ड्यू डेट, सॉरी ओ एवरेज ड्यू डेट नहीं, नॉमिनल ड्यू डेट. सीए फाउंडेशन में एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर चल रहा है इसलिए वो अपने आप आ गया. नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज, and therefore right legal due date. Case 1, देखो 3 का 1, date of the bill is 28th January 2008. 28th January 2008,
ठीक है, पीरियड ऑफ द बिल इज 1 मंथ, पीरियड ऑफ द बिल इज 1 मंथ, तो मंथ में मंथ ऐड करो। सो 28th जनवरी से 1 मंथ क्या आ जाएगा, 28th फरवरी 2008। फरवरी में 28 डेज, हर फरवरी में 28 डेज रहते हैं, एंड लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, उतना पता होना चाहिए। 2008 इज ए लीप ईयर, 4 से डिवाइड होता है, ये लीप ईयर है। सो अगर मंथ है तो मंथ में मंथ ऐड करो, 1 + 1 बिकम 2, जनवरी मतलब 01 + 1 मंथ, तो आपका सेकंड मंथ आ गया 28th फरवरी। यस सर 28th फरवरी है, तो नॉमिनल ड्यू डेट 28th फरवरी, हमें 3 डेज ऐड करने 20th फरवरी के बाद। सो 29th फरवरी फर्स्ट डे रहेगा, यस इस फरवरी में 29 डेज रहेंगे, 30 कभी नहीं रहते, ये छोटे बच्चों की तरह मत करना। सो 29th फरवरी, 1st मार्च एंड 2nd मार्च प्लस 3 ग्रेस डेज, therefore your due date comes to 2nd March 2008. 2nd March is not public holiday, not emergency holiday, so my final date of the settlement of this bill is 2nd March 2008. I think इतना समझ में आया होगा। आगे दिखाओ, एक दो और सम करेंगे तो क्लियर होगा। फर्स्ट डन, सेकंड करते हैं। 31st January 2010, डेट ऑफ द बिल इज 31st January 2010 है। उन्होंने बोला है पीरियड ऑफ द बिल देखो 1 मंथ। नाउ टेल मी वन थिंग, इज इट पॉसिबल, राइट, इज इट पॉसिबल टू हैव, सर आपने बोला तो मंथ में मंथ ऐड करेंगे, तो हम अब ऐसे लिखते हैं 31st February 2010। इज इट पॉसिबल? कोई भी फरवरी में 31 डेज होते हैं क्या? नहीं। 30, अगर हम मंथ में मंथ ऐड करने के बाद जो डेट आती है, अगर उस मंथ में वो डेट नहीं है, लाइक एग्जांपल 31st जनवरी में मैंने एक मंथ ऐड किया, तो मुझे कितना मिला? 31st फरवरी मिला। कभी 31st फरवरी होगा क्या? नहीं। इफ मैं कहाँ पे, मैं मंथ ऑन मंथ का कैलकुलेशन समझ रहा हूँ। इफ पीरियड इज इन मंथ तो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैंने पीरियड ऐड करने के बाद, मंथ ऐड करने के बाद जो मंथ आता है उसमें वो डेट नहीं है, लाइक यहाँ पे फरवरी में 31 डेज नहीं है, इन दैट केस आई हैव टू टेक लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ। तो 2010 फरवरी में नॉन लीप ईयर है, तो लास्ट डेट क्या रहेगी? 20th फरवरी। इफ by adding the number of months in a due date in a bill, maybe date of the bill or date of acceptance जो भी है, नंबर ऑफ मंथ्स ऐड करने के बाद जो डेट मिलती है, अगर वो डेट उस मंथ में नहीं है तो हम उस मंथ की लास्ट डेट लेंगे। समझ में आ रहा है? उस मंथ की लास्ट डेट लेंगे, लाइक 31st फरवरी नहीं है, कभी होता है, तो हमने उस फरवरी का लास्ट मंथ, लास्ट डेट लिया, तो उस फरवरी में लास्ट डेट कौन सा रहेगा? 20th फरवरी रहेगा, एंड देन आई विल ऐड 3 ग्रेस डेज। 20th फरवरी में 3 डेज, 2010 के फरवरी में 28 डेज थे। सो 1st मार्च, 2nd मार्च, 3rd मार्च, ड्यू डेट क्या आएगी? 3rd मार्च 2010। सो ये बिल कब प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए? 3rd मार्च पे, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। सो यहाँ पे जो रूल लिखने वाला था वो रूल यही है, इफ यू डोंट फाइंड द डेट in case of period is in the months, and if you add months in the date and you don't find that date in that month, take the last date of the month, take the last date of that month। अच्छा, अब थर्ड देखो। थर्ड के केस में देखो, ये हो चुका है, ये हो चुका है। थर्ड इज इन द नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज का मैं बाद में समझाऊंगा, पहले नंबर ऑफ मंथ समझा रहा हूं। फोर्थ हम ले सकते हैं, सो फोर्थ लेते हैं, ध्यान देना। फोर्थ, they have given us date of the bill 23rd October 2010, ठीक है। उसके बाद हमें 3 मंथ्स दिए, 3 मंथ्स, मंथ्स है तो इजी कैलकुलेशन। सो कोई बोलेगा सर 23rd 13 मंथ्स नहीं होते, तो कौन सा मंथ आएगा? जनवरी आ जाएगा। 13 मतलब जनवरी, 14 मतलब फरवरी, राइट टू अंडरस्टैंड। सो अक्टूबर से नवंबर फर्स्ट मंथ हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर, एंड दिसंबर से जनवरी हो जाएगा। सो आपकी ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगी 23rd जनवरी, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। आप आगे जा रहे हो
2011. समझा? सो 23 अक्टूबर से 3 months. सो फर्स्ट मंथ खत्म होगा 23 नवंबर पे, फिर सेकंड मंथ खत्म होगा, कब खत्म होगा? 23 राइट दिसंबर पे, एंड थर्ड मंथ कब खत्म होगा? 23 जनवरी. ईयर चेंज हो जाएगा, ईयर नेक्स्ट आ जाएगा. क्लियर है? देयरफॉर आगे ये आ गया आपका 23 जनवरी. 3 डेज ऐड करने हैं सर हमेशा की तरह. यस सर, 3 ग्रेस डेज. ओह माय गॉड, क्या हुआ? 26 जनवरी 2011 ड्यू डेट आ गई. लीगल ड्यू डेट इज 26 जनवरी 11. 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक हॉलिडे. So this is a public holiday and therefore I will take previous working date. Previous working day is 25th January 2011. There can be student who can say, सर अगर यहाँ पे संडे होता तो क्या करते? जब तक वो क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं कि 25 जनवरी से संडे, हाउ कैन आई अज्यूम? आप बोलेंगे सर हम मोबाइल में चेक करते, एग्जाम में वो अलाउड करेंगे क्या? नहीं. अनलेस एंड अंटिल दे से कि 25th इज आल्सो हॉलिडे, आई वोंट गो फॉर द 24th. समझ में आ रहा है? सो 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलिडे. तो वही मैं समझा रहा हूँ. 3 डेज ऐड करने के बाद अगर पब्लिक हॉलिडे तो पीछे आओ, अगर इमरजेंसी हॉलिडे तो आगे जाओ. समझा? सो दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. इफ एनीवन हैज डाउट इन दिस एग्जांपल प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है? एंड दिस इज रूल्स गिवन बाय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ये मैं रूल नहीं दे रहा हूं, लॉ ने हमें रूल्स दे जो मैं आपको समझा रहा हूं. द फिफ्थ, चलो फोर्थ हो गया. यस सर. फिफ्थ में 1 फरवरी 10 से 2 months. 1 फरवरी 2010, 1 फरवरी 2010 से 2 months जाना है. 1 फरवरी से 2 months, तो ये आ जाएगा 1 मई. मंथ में मंथ ऐड करो. ठीक है? 2010. कोई बोलेगा सर अभी आपने दिखाया फर्स्ट में पब्लिक हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे. अरे 3 डेज ऐड करने के बाद पब्लिक हॉलिडे चाहिए. ठीक है? प्लस 3 ग्रेस डेज है क्या? देखो 3 ग्रेस डेज. सो क्या डेट आ गई आपकी? 4th में. क्लियर है? एंड लास्ट ये बाकी था राइट. 30th जून से 4 मंथ जाना है. 30th जून से 4 मंथ जाना है. सो आई विल कॉपी दिस. सो हमें क्या करना है? 30th जून से 4 मंथ. देखो नहीं 30th जून ही है ना. 6 + 4 10. 6th मंथ प्लस 4 मंथ 10th. सो अक्टूबर आएगा. 30th अक्टूबर आएगा. ओरली बोल रहा हूँ. 30th अक्टूबर 4 मंथ के बाद आएगा. फिर उसके बाद 3 डेज 31st अक्टूबर बराबर. उसके बाद 1 नवंबर 2 नवंबर. सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 2 नवंबर आ जाएगी. चाहिए तो देखो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ. 30th जून 2000 जो भी है 11 नहीं 2011 है. ओके. एड 4 months. मंथ में मंथ ऐड करो. सो 30th अक्टूबर 2011 प्लस 3 ग्रेस डेज. 31st अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर. If anyone has doubt regarding this, please raise your hand. So मंथ का कैलकुलेशन जैसे सिंपल कैलकुलेशन है. मंथ में कैलकुलेट करना है तो इससे सिंपल चीज नहीं. सो ये आ गया यहां तक. क्लियर? अब एक बाकी है, थर्ड वाला बाकी है जो मैं अभी समझाने वाला हूं. इफ पीरियड इज इन डेज तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो डेज रहेंगे तो डेज में डेज ऐड करने. मंथ रहेंगे तो मंथ में मंथ ऐड करो, विच इज वेरी सिंपल. एंड अगर पीरियड इज इन डेज तो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल बिकॉज हम डेज में एक्चुअल ऐड करेंगे. सो डेट ऑफ द बिल वाज थर्ड. देखो डेट ऑफ द बिल वाज 13th जून 11. वहां से हमें 60 डेज काउंट करने हैं. सो 30th जून 11. अब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं ध्यान देना. मैं ये हमेशा याद रखना जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं. थर्ड डेट ऑफ द बिल. इसमें कैलकुलेशन थोड़ा
ट्रिकी हो सकता है। डेट ऑफ द बिल, क्या डेट दी उन्होंने हमें? 13 जून। जनरली स्कूल चालू होते हैं 13-15 को। हमें कितने डेज ऐड करने? पीरियड ऑफ द बिल और टेन्योर ऑफ द बिल। कितने ऐड करने? 60 डेज। डोंट से 60 डेज मतलब 2 मंथ्स। मैंने पहले ही नोट में लिख के दिया 30 डेज इज नॉट इक्वल टू 1 मंथ। डेज में डेज ऐड करने हैं। सो 13 जून से 60 कितने डेज ढूंढने? 60 डेज। तो मैं कैसे ढूंढता हूं, ध्यान देना। ये जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ये थोड़ी आपको हमेशा कंफर्ट जोन देगी। सो 13 जून के आगे 30 डेज ढूंढना है। सो जून के कुछ डेज रहेंगे। जून, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ। जून में नॉर्मल डेज कितने होते हैं? नॉर्मल डेज सर जून में 30 डेज होते हैं। उसमें से यूज कितने हो गए? हम 13 जून को बिल ड्रॉ किए। कब बिल ड्रॉ किया? 13 जून। सो पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 14 जून। 14, 15, 16, 17 लाइक दैट। 13 से नहीं पीरियड स्टार्ट करना है, नेक्स्ट डे से करना है। सो डोंट इंक्लूड 13। सो कैन आई से 13 माइनस 30 डेज होते हैं टोटल जून में, उसमें से 13 दिन हो चुके हैं। तो जून के कितने दिन बाकी है? 17 दिन बाकी है। चाहे तो आप उंगली पे गिन सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। अगर कम पड़ते हाथ के तो पैर के भी 10 है, ऐसे 20 तक आप गिन सकते हो। अगर उतना भी नहीं है तो एग्जामिनर को बोलो 10 मिनट, उसके भी 20 है, लेकिन ये करना नहीं एग्जाम में। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। जून में टोटल 30 डेज होते हैं, उसमें से 13 डेज हो चुके हैं बिकॉज 13th डे पे हमने बिल ड्रॉ किया है। तो वहां से आगे देखो, जून के 17 दिन बाकी है, हमें टोटल 60 डेज करने हैं। जून के बाद आएगा जुलाई। जुलाई में 31 डेज होते हैं एंड आई रिक्वायर ऑल 31 डेज बिकॉज मुझे टोटल 60 डेज करने हैं। तो कितने डेज हो गए अभी तक? 8, 4, 48 डेज हो गए। तो हमें अगस्त के कितने डेज लगेंगे? अगस्त में ओवरऑल 31 डेज होते हैं, बट आई विल रिक्वायर जस्ट 12 डेज टू मेक 60 डेज। हो गए 60 डेज? यस सर। सो 13 जून से 60 डेज आता है, देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट इज 12th August 2011। 60 डेज फ्रॉम 13 जून। जब जून में 30 दिन होते हैं, उसमें से 13 हो चुके, तो जून के 17, जुलाई के 31 एंड अगस्त के 12 लगे। सो तो 60 डेज हो गए। तो 13 जून से 60 डेज कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएंगे? 12 अगस्त आ जाएगा प्लस 3 ग्रेस डेज। August 15th। Now everybody knows this is your legal due date. However 15th August being a public holiday, तो हमें previous working day लेना होगा। Therefore this will become 14th August। 3 पब्लिक हॉलिडेज आपको पता ही होनी चाहिए, 26 जनवरी, 15th August एंड 2nd October। Examiner wants or expects that you must know these 3 public holidays। उसके सिवा सर 25 दिसंबर को पब्लिक हॉलिडे ले या नहीं ले, डोंट टेक इट अनलेस एंड अंटिल एग्जामिनर सेज। ये 3 हॉलिडेज आर इवन एग्जाम के लिए भी पब्लिक हॉलिडे हमेशा मानो। बाकी हॉलिडेज जब तक एग्जाम में नहीं देते तब तक हम उनको नहीं मानेंगे। ये एग्जाम नोट है, ठीक है। सो डेज में है तो हम डेज के हिसाब से जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? सो लेट मी चेक। Yes, we will go for this question number 1 from your textbook. Date of the drawings, date of acceptance, payable। ध्यान देना, फर्स्ट केस में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है एंड पीरियड इज 60 days after date। 60 days after date। So your 60 days will start from date of drawings। second case में 3 months after sight, तो 3 months will start from date of acceptance। आगे लिखा है 1 month after date, so 1 month will start from which date? 23rd February, date of drawings। 1 month after date, yes sir, after date of drawings है
45 days after drawing. सर लिखा नहीं है आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, तो मैंने बोला इट इज स्टैंडर्ड assumption that bill is always and always considered as after date bill. Now you have to calculate. I will give you 5 minutes. आप, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ. You have to solve it. आपके सामने मैं टाइमर लगा रहा हूँ. The question is on your screen. You have to tell me, right, the due dates. ले लो. 5 मिनट है आपके पास. Time has already started. You have to ping me your answer. ठीक है, एक ही साथ पांचों आंसर पिंग करो, एक एक करते मत बैठो, पांचों ढूंढो और एक साथ पिंग करो. योर टाइम हैज स्टार्टेड. थ्री मिनट्स रिमेनिंग. गिव इट अ शॉट. जस्ट वो आप पे टाइम पास मत करो, बैठे हैं, घर वालों ने बिठाया है, फीस पेड की है तो बैठना है, ऐसे नहीं होता है ना. प्रोएक्टिव रहो, एक्टिवली इन्वॉल्व रहो. लर्निंग इज अ फन प्रोवाइडेड यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व. So there are some answers. Okay, good. Mm-hmm. नितिन एक साथ ही आंसर लिखो, मतलब वो मुझे क्लिक होगा. एंड हम जिस दिन बिल ड्रॉ करते हैं उसी दिन ड्यू डेट डिसाइड की जाती है. ठीक है, पेमेंट के टाइम नहीं ड्यू डेट डिसाइड की जाती है. तो हम उसी जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाएगा उसी दिन हम फाइनल करेंगे कि क्या ड्यू डेट है. ठीक है, तभी निकाल सकते हो ना, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग. ओके,
लास्ट 15 सेकंड्स। सिद्धि मैम, अगर हर अमाउंट आगे पीछे अलग अलग लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? एक साथ लिखो ना। ओके। मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन मी आंसर, यू नो योर आंसर, चेक करो कहाँ पे रॉन्ग है तो आप मुझे बोलो, ठीक है? अच्छा, कोई मुझे ऐसे एकदम सब्सटेंशियली हटके आंसर नहीं मिला, कुछ ऐसे एकदम ऑकवर्ड आंसर, ऐसे कुछ तो 2030 2040 ऐसे कुछ आंसर नहीं मिला, दैट इज गुड थिंग। सो ध्यान देना, मैं आंसर निकालता हूँ। फर्स्ट केस में यू हैव टू कैलकुलेट 60 डेज फ्रॉम 30th जनवरी 2019। सो मैं कैसे निकालता हूँ, ध्यान देना। 2019 30th जनवरी 2019, ध्यान देना। आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी डेज, राइट? 60 डेज। तो पहले मैं लिखूंगा जनवरी। जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से कितने डेज बाकी है? 31 माइनस 30। जनवरी के 1 डे बाकी है। कितना डे बाकी है जनवरी का? एक दिन बाकी है जनवरी का, ध्यान देना। जनवरी का एक दिन लेफ्ट है, बैलेंस है। हमें टोटल 60 डेज जाना है, तो फेब्रुआरी, दिस इज अ नॉन लीप ईयर, तो इसमें 28 डेज रहेंगे। 28, अभी तक 29 डेज हो गए। मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। मैं 31 लेता हूं तो कितनी डेज आती है? देखो, 10 1 कैरिड 60। यस सर, 31 मार्च पे, राइट, एग्जैक्टली 60 डेज हो जाएंगे। सो 30th जनवरी से 30 डेज, सॉरी, 30th जनवरी से 60 डेज इज 31st ऑफ मार्च। सो प्लस 60 डेज is, right, 31st March 2019 plus 3 grace days. So what is your due date? कोई मुझे बोलेगा what is the due date? Should be 1st April, 2nd April, 3rd April. चेक करो, अगर मेरा आंसर रॉन्ग है यू कैन से मी, राइट? अगर रॉन्ग है तो आई डोंट थिंक सो, राइट? सो देखते हैं, फर्स्ट इज 3rd April, ठीक है? मैंने यहां से क्यों पीरियड मेजर करना स्टार्ट किया? बिकॉज बिल इज आफ्टर डेट, सेकंड बिल इज आफ्टर साइड, 3 months आफ्टर साइड। ये तो बहुत सिंपल है सर, इसमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। सो 8 August 8 plus 3 months, August plus 8 plus 3 11, 11, फिर 21। सो यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड, 21st August 19 से 3 months मेजर करना है आगे। सो 21st अक्टूबर नवंबर 19 आएगा, बराबर ना? प्लस 3 ग्रेस डेज ले लो, सो इट इज 24th November 2019, ठीक है? आफ्टर साइट इसलिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर 1 month आफ्टर डेट, सो दिसंबर से 1 month जाना है तो जनवरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जनवरी आ जाएगा। अच्छा, 2020 आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2020। एंड 23 plus 3 डेज ऐड करने होते हैं। सो ये आपकी एक्चुअल डेट आएगी, नॉमिनल ड्यू डेट आएगी 23rd जनवरी 20 प्लस 3 डेज ऐड करोगे तो दैट विल बिकम 26th। ध्यान देना क्या होगा, दिस विल बिकम 26 जनवरी। एंड एज यू नो 26 जनवरी इज ए पब्लिक हॉलिडे, तो हमें प्रीवियस वर्किंग डे लेना होगा 25th जनवरी। चेक करो आपका आंसर बराबर है क्या? 25th जनवरी आना चाहिए। नाउ 1 month फ्रॉम 28th जनवरी, 28th जनवरी से 1 month, 28th जनवरी से 1 month फरवरी आएगा। 20th फरवरी 2019, 2019 के फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28। हर फरवरी में 28 तो होते ही होते, उतना तो सबको पता है। एंड दिस इज नॉन लीप ईयर, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। सो 20th फरवरी मिल रहा है हमें, वहां से 3 डेज जाना है, 1st March, 2nd March, 3rd March। 20, ओ माय गॉड, ये टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे डेट गलत है भाई। ऐसे कौन करेगा रे कि आज बिल ड्रॉ हो रहा है एंड 2020 में एक साल के बाद कोई बिल एक्सेप्ट करेगा?
देखो ये रैशनल बंदे, मुझे आई एम ए रैशनल पर्सन, मुझे वो गलत लगता है, तो मैं इसको 29 ही लेता हूँ, 2019 लेता हूँ, ठीक है। वो प्रिंटिंग एरर होगी आगे, सो दैट इज 2019 आगे। उसके बाद 30 जून से 45 डेज ढूंढने। अच्छा गुड, डेज का कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए आफ्टर डेट। 30 जून से, जून में ओवरऑल 30 डेज होते हैं, जून में ओवरऑल 30 डेज होते हैं, उसमें से 30 खत्म हो चुके हैं ना। 30 जून से 30 डेज कितने रोज है, 45, तो जून के 30 डेज हो चुके हैं, तो जून के 0 डेज बाकी है, बराबर ना, जून एंड हो चुका है, 1 जुलाई से डेज स्टार्ट हो जाएंगे। योर डेट ऑफ द बिल इज 30 जून, तो आपके पीरियड कब से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे से, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो जून का एक भी डे नहीं है। फिर आ जाएगा जुलाई, जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई में टोटल 31 डेज होते हैं, तो आई विल टेक 31। एंड फिर आएगा अगस्त, मुझे कितने डेज करने, 45 डेज करने, 45 डेज, तो मुझे 14 डेज ऑफ अगस्त लेता हूं, तो मुझे टोटल 45 डेज मिलेंगे। सो माय नॉमिनल ड्यू डेट इज 14th अगस्त प्लस 3 ग्रेस डेज, 17th अगस्त। चेक करो, राइट, आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, लेट मी चेक। जिसका आंसर मुझे अभी दिख रहा है 5th, नतन तेरा 16th अगस्त कैसे आया 5th, चेक, इट शुड नॉट बी 15th अगस्त, आई थिंक यू हैव टेकन 30th जून एज वेल। सो 30th जून को बिल ड्रॉ हुआ, तो पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, सो जून का एक भी डेज नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, मैं जब भी डेज कैलकुलेट करता हूँ ना, तो उस मंथ में 30 डेज है, एंड फिर डेट ऑफ बिल माइनस करता हूँ 30, 30 माइनस 30, तो जून के 0 डेज आ गए, हमेशा वैसे करने का, ठीक है। ओके, ये थर्ड बराबर है, 24th बराबर है, 25th बराबर है, थर्ड 17। वैष्णव का एकदम परफेक्ट है। उसके बाद आगे पीछे लिखा है किसी ने, सो आई कैन एज्यूम अमृता मैडम फर्स्ट का 31st मार्च कैसे आया आपका, मैडम यू आर नॉट एडेड 3 ग्रेस डेज, मैडम यू हैव नॉट एडेड 3 ग्रेस, खाली 60 डेज ऐड नहीं करने, एक्चुअली 63 डेज आने चाहिए, 45 डेज नहीं, एक्चुअली वो 48 डेज रहता है, समझ में आ रहा है। सो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड व्हाट, राइट, ग्रेस डेज, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, एरर से ही सीखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम्हारी एरर में भी बाकी लोगों के लिए राइट गाइडलाइन हो सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी कंपैशनेट, मैंने फर्स्ट डे पे बोला, मे बी यूर एरर्स में हेल्प अदर्स, ऑब्वियसली आपको तो हेल्प करेगी करेगी, बाकी लोगों को भी हेल्प करेगी। उसके बाद आदित्य मैडम का क्या आंसर है, ओके मैडम, आदित्य मैडम आपका फर्स्ट रॉन्ग है, आई डोंट नो व्हाई, आपने वहां हर जगह पे यू हैव नॉट एडेड 3 ग्रेस डेज, मैडम डोंट फॉरगेट टू ऐड 3 ग्रेस डेज। जानवी मैडम परफेक्ट है, ऑलमोस्ट सब चीजें गुड। मैडम लास्ट गलत है, आई डोंट नो व्हाई, लास्ट का गलत है आपका, एक बार चेक करो चाहिए तो। Nathan, I don't know how you pronounce it, right? 26 January is a public holiday, therefore go for the previous day. ठीक है? Then Deepa, okay, perfect है, everything is perfect, good. उसके बाद संचिता, आई डोंट नो क्या गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड ग्रेस डेज ऐड नहीं किए आपने मैडम, थर्ड में ग्रेस डेज ऐड नहीं किए, हर जगह पे यू आर नॉट एडेड ग्रेस डेज, सो बी केयरफुल, यू विल ऐड ग्रेस डेज, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। Now I will move right to the next question in my notes. ध्यान देना, राइट, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें दिस इज, ये नोट्स एक्चुअली पास्ट एग्जाम मतलब प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से थे, तो दिस डेट इज नाउ नो लॉन्गर रिलेवेंट। आई हैड रिटन मेनी टाइम्स टू द बोर्ड कि वो लोग क्या करते थे पता है, उनकी ड्यू डेट कैसे निकालते थे, वो बोलते थे अगर डेट आफ्टर बिल वाला है, आफ्टर डेट वाला बिल है, आफ्टर डेट वाला, तो पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉवल ऑफ द बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनके 100% एग्री, सहमत था मेरा उनसे। अगर आफ्टर साइट बिल होता था ना, आफ्टर साइट, आफ्टर एक्सेप्टेंस वाला, तो वो क्या करते थे पता है,
डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विच एवर इज अर्लियर से पीरियड स्टार्ट करते थे, विच इज टोटली रॉन्ग। मैंने बहुत बार उनको लिखा था। उन्होंने कब चेंज किया? जब सिलेबस ही चेंज होगा तब उन्होंने ये निकाल दिया। सो दिस इटसेल्फ वाज अ रॉन्ग। तो ये पहले वाले जो आपके सीनियर थे ना, वो रॉन्ग करते थे, और मैंने उनको बच्चों को भी बोला था हम रॉन्ग कर रहे हैं, बट सिखाना तो पड़ता था, मार्क्स के लिए उतना चलता है। सो हेंस फोर्थ डेट ऑफ, आप बिल कब प्रेजेंट करते हो उसका कोई लेना देना नहीं है। एक तो बिल ऑफ ड्रॉवल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यही दोनों डेट्स मायने रखती है। सो नाउ इसलिए मैंने उस कॉलम को कैंसिल किया है। 5th जनवरी को हमने बिल ड्रॉ किया, डेट ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल इज 3 months, टाइप ऑफ द बिल इज आफ्टर डेट, एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 7th of January. So as bill is after date, your 3 months will start from date of the bill. बराबर। सेकंड केस में देखो 45 days का बिल है and bill is after date, so 45 days will start from date of drawal of the bill. The third bill is after sight, after acceptance है, तो 3 months will start from date of acceptance. Next, the next bill is of after sight, 2 months will start from 30th August. समझ में आ रहा है? So now we have to solve it. Question number 4. So मैं अपना फॉर्मेट कॉपी करता हूं। ठीक है, दिस इज केस 1। केस 2 डेज में है तो मैं उसको अलग से करूंगा, केस 3 एंड केस 4। ठीक है, इधर आई हैव टू टेक डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एज द केस में भी। ठीक है, फर्स्ट केस में, अच्छा किधर गया अपना क्वेश्चन, यहाँ पे। फर्स्ट केस में देखो 3 months विल स्टार्ट फ्रॉम 5th January 10, 5th January 10, 3 months, therefore मंथ में मंथ ऐड करो, 1 + 3 comes 4, so can I say नॉमिनल ड्यू डेट इज 5th of April। 5th April में कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लस 3 ग्रेस डेज, 5th of April प्लस 3 डेज, 8th April इज माय ड्यू डेट। बिल कब प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए? 8th April पे, ना ही पहले ना ही बाद में, 8th April पे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ड्यू डेट। उसके बाद सेकंड केस में 45 डेज में वो होल्ड पे रखता हूं, बिकॉज वो नंबर्स डेज में, तो मैं उसको अलग से कैलकुलेट करूंगा। थर्ड केस में 3 months आफ्टर साइट है, तो आई हैव टू कैलकुलेट 3 months। अगर आप देखते भी हो डेट ऑफ बिल इज 15th में एंड एक्सेप्टेंस इज आल्सो ऑन द सेम डेट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से भी स्टार्ट करो, बट लॉजिकली यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इसलिए मैंने वहां पे हाईलाइट किया है। सो 15th में 9 से 3 months, 15th में 2009 ना, 9 ही था ना या 19 था, 2009 था, यस। 15th में 9 से 3 months, so can I say 15th August 2009? सर ये पब्लिक हॉलिडे आया, प्रीवियस डे ले क्या? मैंने पब्लिक हॉलिडे की बात कब की? 3 days ऐड करने के बाद अगर पब्लिक डे है तो पहले ले लो। हैव यू एडेड 3 days? यू एडेड 3 months, नॉट 3 days। so अब 3 days ऐड करो, 18th August। नाउ राइट, इज 18th August इज अ पब्लिक हॉलिडे? ये डेट पब्लिक हॉलिडे के, ये देखो, अगर है तो क्वेश्चन प्रीवियस डे ले लो, अदरवाइज नहीं लेना है। सो डोंट कंसीडर नॉमिनल ड्यू डेट, कंसीडर लीगल ड्यू डेट। नेक्स्ट, फोर्थ के केस में क्या है? आई हैव टू कैलकुलेट 2 months फ्रॉम 30th August, बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टेंस है। 30th August से 2 months, क्या 2010 2011 है? गुड, सॉरी। सो 30th August से 2 months, अगस्त से 2 months, 10 आ जाएगा।
अक्टूबर में 30 डेज होते हैं, एक्चुअली 31 डेज होते हैं, तो 30 चल जाएगा, यस सर, प्लस 3 ग्रेस डेज। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, क्लियर है? सो एंड द लास्ट हमें सेकंड वाला करना है, ठीक है। सेकंड के केस में 45 डेज का क्राइटेरिया था, 45 डेज आफ्टर डेट लिखा है, सो 45 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम 12th of March, मतलब 45 डेज कहां से गुनना है, 13th March फर्स्ट डे, 14th March सेकंड डे, लाइक दैट, ठीक है। सो 12th March 2010 से 45 डेज गिनने, 12th March 2010 से 45 डेज मेजर करने, ये आपकी नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगी, उसमें हम 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे, देन यू विल गेट लीगल ड्यू डेट। सो देखते हैं मार्च में, ध्यान देना, मार्च में ओवरऑल कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। सो कितने दिन बाकी है, 12 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन बाकी है, तो 31 माइनस 12, मैं हमेशा डेट ऑफ बिल माइनस करता हूँ, या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एज द केस में भी, जो आप जहां से आप पीरियड मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो। सो 31 माइनस 12, आई थिंक मेरे हिसाब से 19, यस 19। सो 19 डेज, हमें टोटल 45 डेज ढूंढने, उसमें से 90 डेज कहाँ पे मिल गए, मार्च के, 45 डेज करने ना, सो 6 1 आ जाएगा, 2 26 डेज ऑफ अप्रैल चाहिए। अप्रैल भले ही 30 डेज का है, बट आई रिक्वायर ओनली 26 डेज ऑफ अप्रैल। सो 26 डेज ऑफ अप्रैल अगर मैं लेता हूं, तो मेरे 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन आई विल ऐड 3 ग्रेस डेज। 29th April 2010 is my nominal date, is my legal due date, ठीक है। So this is the answer. Now, sir, there is a question, sir, when calculating the due date and the nominal due date is a public holiday, while calculating the due date, if the nominal due date is a public holiday, do have to take the previous day before adding the, oh my god, अभी हमने कहाँ पे तो देखा, कहाँ पे था, देखो यहाँ पे, ये किसी ने भी क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर यहाँ पे, मैडम नॉमिनल ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉमिनल ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे। देखो आई नो बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज मैं भी उस फेज से गया हूँ, मैं भी स्टूडेंट था, तो मुझे भी वो पता है, एज ए टीचर, राइट, मुझे वो समझ में आता है, बिकॉज मैंने बच्चों को सिखाया, तो मुझे पता है बच्चे क्या पूछते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे ड्राफ्ट किए कि जहां पे मेरे आंसर्स मिले, जो मैं क्वेश्चन बच्चों को मिलता है, उसके आंसर्स उनको क्वेश्चंस के आंसर में मिले। मैडम यहाँ पे 15th August इज अ पब्लिक हॉलिडे, नॉमिनल ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलिडे, नॉमिनल ड्यू डेट होती ही नहीं है यार, मैंने पहले बोला, आपके महाराष्ट्र बोर्ड में नॉमिनल ड्यू डेट, एक्चुअल में नॉमिनल ड्यू डेट का कोई लेना देना ही नहीं है। तो 15th August से 3 दिन डायरेक्टली, डोंट टेक प्रीवियस डे, 3 डेज ऐड करने के बाद का पब्लिक हॉलिडे या इमरजेंसी वो देखो, अदरवाइज मत देखो, समझा? तो उसका आंसर मैम, आई डोंट नो किसी ने पूछा है, राइट, आई हैव गिवन यू आंसर, ठीक है। सो दिस इज डन, गुड। सो डोंट कंसिडर नॉमिनल ड्यू डेट फॉर द डिसाइडिंग पब्लिक हॉलिडे और इमरजेंसी हॉलिडे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है? नाउ आई विल गिव यू 5 minutes, 6 एग्जैक्टली 6 हुए, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वी विल कंप्लीट दिस टेबल टुडे ओनली, राइट। सो this is a question, your 5 minutes has already started.
Last 1 minute. ओके, बल्कि आई कैन इजीली फाइंड आउट। 3 तो मंथ वाले तो परफेक्ट है, अब डेज का देखता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। लेट्स सी, पहले डिसाइड करना होता है। ओके, मैक्सिमम लोगों के बराबर है, मैंने देखे हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे पिंक किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहले डिसाइड करो हमें कहाँ से पीरियड मेजर करना है। इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिल। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिल, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिल। आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, आफ्टर साइट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, आफ्टर डेट डेट ऑफ द बिल, after site date of acceptance, after date, yes. So the tenure starts if in case of bills after date from the date of drawal, and in case bills are after site after acceptance, the date will start from after date of acceptance. So first case में देखो 45 days from 3rd January, 45 days from 3rd January, ध्यान देना। I will calculate 45 days from 3rd January. So कहाँ पे निकालू, कहाँ पे निकालू? Okay, I can cancel this, ठीक है, everyone has this, so मैं ये जानबूझ के कैंसिल कर रहा हूँ। Let's see, yes, I have to calculate 45 days from the 3rd January. तो I will get nominal due date, and उसमें अगर मैं 3 days ऐड करता हूँ तो मुझे लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी। 3rd January 2020 लीप ईयर है, 3rd January 20 इज अ लीप ईयर, सो इस फरवरी में 29 डेज रहेंगे, ठीक है, देखते हैं। सो मुझे 45 डेज कैलकुलेट करते हैं, जनवरी के टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से 3 डेज हो चुके हैं, सो कैन आई से 28 डेज ऑफ जनवरी, यस, जनवरी के 28 डेज बाकी है। फिर आएगा आपका फरवरी, मुझे 45 डेज करने हैं, इस फरवरी में 29 डेज रहेंगे, बट अगर मुझे 45 कंप्लीट करने तो 17 डेज आर मोर देन इनफ, मुझे 45 डेज ढूंढने ना, सो ये आ जाएगा 45 डेज। सो my nominal due date is 17th February 2020. My nominal due date is 17th February 20 plus 3 grace days, 20th February 20 is my legal due date. चेक करो करेक्ट है या रॉन्ग है। सेकंड केस में 4 months आफ्टर साइड, तो 12th अप्रैल से 4 month, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, सो 12th August is my nominal due date plus 3 grace days, 13th August, 14th August, 15th August. 15th August is a public holiday, therefore my legal due date will come 14th August 20. क्लियर है? 19 है तो 19, मैंने वो देखो प्रिंटिंग एरर, अभी तक हमारे 3-4 लेक्चर्स क्या नहीं हुए, हमने अभी तक इतने एरर्स ढूंढे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, सो दिस इज 19 है तो सब चीजें 19 के हिसाब से रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, you have to calculate 2 months from 23rd November, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, सो 23rd January 20 आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा 20 आएगा, बराबर। 23rd January 20 इज ए नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज, 24th 25th 26th January 20. However, this is a public holiday, therefore 25th January 20 will be treated as legal due date. आगे
हमें 4 मंथ्स आफ्टर साइड ढूंढने, तो अगस्त से 4 मंथ्स, अगस्त से सितंबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो ये आ गया आपका दिसंबर, 20 दिसंबर 19 प्लस 3 ग्रेस डेज, 23 दिसंबर 19। फिर आएगा आपका 23 से 21 दिसंबर से 60 डेज ढूंढने आपको आफ्टर डेट। सो मैं यहाँ पे ढूंढ के दिखाता हूँ, देखो 23 दिसंबर से 60 डेज। नहीं 2018 है, अच्छा 80। तो देखते हैं, दिसंबर में टोटल 31 डेज होते हैं। सो 31 माइनस 23, सो दिसंबर के आई कैन से 8 डेज है, दिसंबर के 8 डेज है। मुझे कितने डेज ढूंढने रहे? 60 डेज। अच्छा फिर मेरा जनवरी आएगा, जनवरी में 31 डेज होते हैं, मुझे 31 के 31 चाहिए। सो अभी तक मेरे कितने डेज हो गए? 39 डेज हो गए। फिर मेरा फेब्रुआरी आएगा, फेब्रुआरी 19 आएगा, नॉन लीप ईयर 28 डेज रहते हैं। सो मुझे 60 करने हैं ना, सो 21 डेज ऑफ फेब्रुआरी चल जाएंगे। सो 60 डेज आफ्टर 23rd December comes 21st February 2019. So 21st February 2019 plus 3 grace days, 22nd, 23rd, 24th. I think you should be in position to बराबर है पहला, 14 बराबर है, 25 बराबर है 23rd, राइट 24 परफेक्ट। पलकेश परफेक्ट है तेरा, गुड। नेक्स्ट आगे। सो आगे किसी ने, मैं एक जस्ट बार देखता हूँ, मतलब मुझे समझ में आ गया, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। 20th, 14th, 25th, 23rd एंड ये जो प्रिस्टेन दास, लास्ट वाला रॉन्ग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट वाला रॉन्ग है, अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। हाँ वो बराबर किया तूने, लेटर ऑन यू चेंज इट, गुड। नेक्स्ट आगे। ये जो है 15 अगस्त, विनय मैडम 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे। 25th ये बराबर है, 23rd ओके, 24th परफेक्ट। सो यस आई अप्रिशिएट कि बच्चे कर रहे हैं। आई डोंट नो माधव का फर्स्ट आंसर 1 मार्च कैसे आया, आई डोंट नो, दैट आंसर इज 20th अप्रैल, बाकी सब बराबर है उसका, ठीक है गुड। से लास्ट वाला भी रॉन्ग है, उसने 26 लिया है, 26 फरवरी, माय आंसर इज 24th फरवरी। यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों आंसर चेक कर रहा हूँ, सो दैट मुझे समझे कि बच्चे गलती किधर करते हैं। एज ए टीचर फॉर मी दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सचित्रा, सचिन, सरोदे मैडम, ये 1 मार्च कैसे आया आप लोगों का रे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलत बराबर है मेरा, 20th आना चाहिए। आई डोंट नो आपने कैसे लिया मैम, बाकी बराबर है मैडम आपका, ठीक है, बाकी सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला गलत है कुछ, तो तूने 19th दिसंबर लिया है, वो भी 19th दिसंबर। मैडम दिसंबर से 60 डेज दिसंबर कैसे आएंगे? दिसंबर से 60 डेज दिसंबर कैसे आएंगे? आगे जाएंगे ना मैडम। सो नेक्स्ट आगे। सो यस गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर, यस परफेक्ट। 26 फरवरी कैसा है लोगों का नहीं पता। सो वर्क, अगर नंबर ऑफ डेज है तो कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर थोड़ा काम करो। नंबर ऑफ डेज है, मंथ तो बहुत इजी होता है, मंथ में क्या है, ठीक है। सो if anyone has doubt please raise your hand so that I can answer, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। सो वी कैन टेक ब्रेक फॉर द डे। आज हमने कैलकुलेशन किया एंड वर्क ऑन इट, जो भी हमने अभी क्वेश्चंस किए, आई विल बी शेयरिंग द शीट विद इन 15 to 20 मिनट्स, राइट। इस पे वर्क करो, नंबर ऑफ डेज के केस में थोड़ा काम करो, मंथ्स इज वेरी इजी, ठीक है। सो कल का टाइमिंग सेम रहेगा एंड आई होप यू आर ऑल गेटिंग मेल्स, राइट। और ये रिकरिंग वेबिनार्स है तो आपको
अलग से कुछ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। फिर से जो नए बच्चे ज्वाइन हुए आज उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, कीप ऑन स्टडिंग, जितना टाइम मिलता है जो भी सिखाया 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ोगे मोर देन इनफ है। एंड मैथ्स का जो चल रहा है शायद से मैम हैज स्टार्टेड विद सम इंडेक्स नंबर जो मैं शीट चेक कर रहा था ग्रुप पे, राइट। वर्क ऑन इट, डोंट वेट कि फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होंगे और फिर हम करेंगे, राइट। गिव योर टाइम, सर्च अदर थिंग्स, कुछ अच्छा सीखो, ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ऑन दिस नोट आई विल टेक ब्रेक फॉर द डे, राइट। थैंक यू।